Hello, beautiful souls. Welcome to my channel, Mystical Annie. So, today we are going to do a reading, monthly reading for Libra for the month of October 2025. This will be a general reading, guys. So, please take what resonates with you and leave the rest. For more accurate and personal readings, you can reach out to me. Okay, I have also posted the reading from October to December 2025 on my channel. And if you're interested in seeing what 2025 has for you, at the end you can check that reading out. Okay, so let's see what do the cards have. In this reading we will see the overall energy for the month, key challenges, obstacles, actions or advice, strength and opportunities, and probable outcome. At the end we will also take some guiding message from the angel and ancestors deck, so please do stay till the end. Okay, so let's see what do the cards have for Libra for October 2025. For Libra, overall energy for Libra in October 2025. Overall energy for Libra, October 2025. Overall energy for Libra, October 2025. Overall energy for Libra. Okay. Alright. Let's see. Whoa, whoa, whoa. What's happening, Libra? What's happening? Dealing with so much, is it? Let's see. Let's see the overall energy for Libra for October 2025. For whoops. Okay, I'll take the first one. Alright. Let's see. Let's see what do the cards have as the challenges and obstacles for Libra. Obstacles for Libra in October. Obstacles and challenges for Libra. October. Challenges and obstacles for Libra. Okay. Alright. Let's see what's the action and advice here. What's the action and advice here for Libra for October? Action or advice for Libra for October 2025. Okay. Alright. Let's see what's the strength and opportunities. What's coming as the strength and opportunities for Libra. Okay. What's the outcome? Outcome for Libra in October 2025. Okay, got it. So the overall energy for Libra here I see is, there is this energy of, it can be either your energy or it can be the energy of people around. Okay, तो अभी we will see how it is when it comes to your energy. तो अगर आपको अगर आपने किसी तरह का आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, रिकग्निशन मिला है, किसी तरह का आपको सक्सेस मिला है आपके काम के लिए, आपके वर्क के लिए, आपके रिलेशंस में आपको कुछ नया आप नए रिलेशन में अगर आप हो, तो आपको किसी भी चीज़ में बेसिकली नए रिलेशन में आप हो, मतलब कि इफ़ यू आर सिंगल एंड नाउ यू आर विद अ पार्टनर, और इफ़ यू आर पार्टनर एंड इफ़ यू आर एंगेज नाउ यू आर यू अबाउट टू गेट मैरिड. So whatever, it's like next level. Okay, so in your work place, in your love life, अगर आप अपने किसी भी फेज में अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, which is basically इन ग्रोथ साइड. ओके, तो आपको जब ये रहेगा तो आपको अपना एनर्जी ऐसा नहीं रखना है कि आई हैव अचीव्ड इट एंड द पीपल आर बिहाइंड मी. ओके, तो आपको इस तरह की एनर्जी में नहीं आना है, आपको हम्बल रहना है. ओके, हो सकता है जितना रिवॉर्ड आपको मिला हो उतना किसी आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशंस में किसी और को उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिले हो. जो आपके पास, जो आपने अचीव किया है, हो सकता है दूसरे ने उससे थोड़ा कम अचीव किया है. राइट, तो आपको उस तरह की एनर्जी में नहीं आना है कि मैं ये, मेरे पास ऐसा, मेरे पास ऐसा, उस तरह का एटीट्यूड एरोगेंस में नहीं बदलने देना है. ओके, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ऑल्सो अगर इस तरह का आपके साथ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो वेयर पीपल आर ट्राइंग टू ओवर पावर यू बाय वट एवर दे हैव अचीव्ड, तो आपको उसको अपने ईगो पे नहीं लेना है. आपको जस्ट
सी हाउ इन अ बैलेंस्ड वे आप उस सिचुएशन को डील करो, ना कि उस चीज़ को अपने ईगो पे लेकर आओ और फिर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स में आप आप फंस जाओ। ओके, तो उस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना है आपको, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट रहना है अपने साथ, अपने आसपास में आपके जो लोग हैं उनके साथ में। किसी को बेसिकली नीचा नहीं दिखाना है, और कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो आपको अपना लेवल आपको नीचे नहीं करना है बेसिकली, राइट, टू फाइट विद देम फॉर दिस थिंग। सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। आपको बहुत हम्बल तरीके से, बहुत काइंड, बहुत मिच्योर तरह से चीज़ों को हैंडल करते हुए आपको सिचुएशन को डील करना है। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर अक्टूबर। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस इज, आप अपने रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हो। ओके, से आईलैश, आप अपने अवार्ड्स का, अपने जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी आपके वर्क प्लेस में आप किसी रिकॉग्निशन का वेट कर रहे हो, किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, किसी एप्रिसिएशन का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का क्रेडिट मिलने का वेट कर रहे हो, उस तरह की एनर्जी है। सो मे बी आपको लग रहा है कि जितना आप काम कर रहे हो उतने उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। सो देयर इज दिस एनर्जी कि यार, आई एम गिविंग माई 100% एंड आई एम गेटिंग ओनली 10% इन रिटर्न। ओके, उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, बट यू डोंट हैव टू लूज योर पेशेंस। आपको इल्यूशंस में नहीं जाना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको देयर इज दिस एनर्जी ऑफ वेटिंग। तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बट आप जितना ज़्यादा उसको वेट करोगे ना, और इस एनर्जी में रहोगे कि यार ये मिल नहीं रहा, ये कब होगा, ये हो नहीं रहा है, तो आप उस चीज़ को और डिले करोगे, राइट। इट्स लाइक कि प्लांट तो अपनी स्पीड में ग्रो होता है ना, आप उसको रोज रोज एक्स्ट्रा पानी दे दे के तो आप उसको जल्दी ग्रो नहीं करवा सकते हो, राइट। वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो जितना ग्रो टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में, उतने टाइम पे ग्रो होगा, राइट। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट द रिवॉर्ड। तो थोड़ा सा इम्पेशेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, बट आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। आपको यू नीड टू हैव फेथ कि यू विल गेट द रिवॉर्ड्स, ओके, बट उसके लिए इम्पेशेंट नहीं होना है। यू डोंट हैव टू लूज योर पेशेंस, यू डोंट हैव टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, रैदर यू नीड टू हैव दैट बिलीव। आपको ये बिलीव और ये फेथ होने की जरूरत है कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, सो जस्ट हैव दैट एनर्जी। इम्पेशेंट नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने देना है सिचुएशन का, इन दिस एनर्जी ऑफ वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ओके, सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ एक्शन और एडवाइस हियर इज, यू नीड टू बी पैशनेट। ओके, देयर इज दिस एनर्जी। अगर आप अपने, जैसे आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा लो एनर्जी, लो फील करोगे, लो एनर्जी, आपका लेवल उतना नहीं होगा जितना एनर्जेटिकली आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं करो, तो आपका पैशन आपके काम के लिए थोड़ा कम हो जाए। मे बी इन योर रिलेशंस आप थोड़ा इग्नोर कर रहे हो अपने फैमिली को, अपने रिलेशंस को, तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी पैशनेट, यू नीड टू work with passion, with energy. Maybe I also see that you might be feeling passionate when it comes to your connection, when it comes to your love life. Maybe you are having this passionate feeling, or you are feeling passionate towards somebody, you might be feeling attracted towards someone. उस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। ओके, एंड देयर इज ऑल्सो अ चांस कि यू माइट मीट समबडी। ओके, इट कैन बी समवन जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है। उस तरह की एनर्जी दिख रही है कि यू माइट मीट समबडी, जिनके साथ आपका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ओके, सो देर आर ऑल्सो द चांसेस ऑफ meeting someone. Also, I see that there is this energy of grabbing the new opportunities. अगर आपको अपने वर्क लाइफ में if you're getting the new job, तो आपको बहुत अगर आप चाहते हो कि आपको न्यू जॉब मिले, आप अपना फील्ड में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक टुवर्ड्स इट। आपको उसका अपने पैशन को फॉलो करना है बेसिकली, राइट। तो अगर आपका कोई हॉबी है जिसको आप अपना एक नया साइड हसल स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ यू आर यू वांट टू रियली वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट एंड क्रिएट समथिंग फ्रॉम दैट, so you need to work towards it. Okay, so that is what also I am getting. Now the strength and opportunities, as I said, so अगर आप कुछ सोच रहे हो, so you need to work towards it. So there are very good chances कि आपको बहुत नए नए थॉट्स आए, बहुत क्रिएटिव आपको it's basically having new ideas, creative ideas, innovative way of thinking. ओके, उस तरह की चीज़ें हैं। कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर होंगी, एंड आपको बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें दिखाई देगी, और आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए आप रेडी रहोगे। बट ऑल यू हैव टू डू इज टू बी पैशनेट टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर गोल।
Okay, that is what I'm getting. Also, I see that you will be more reasonable, more logical than emotional. Okay, so you need to think clearly, see clearly, create boundaries wherever it is required. अपने communication को बहुत clear और crisp रखना है, but at the same time, as I said, blunt नहीं होना है, right? आपको किसी और को अपने communication के through, अपने words के through hurt नहीं करना है, बहुत mindfully आप अपने words को use करिए, अपने जो भी आपको एक्सप्रेस करना है बहुत केयरफुली आप अपने वर्ड्स यूज करो, सो दैट द अदर पर्सन और द पीपल अराउंड आर नॉट हर्ट और फील ऑफेंडेड बाय इट. Okay, so that is what I am seeing. The outcome here is you will get the success. Okay, you will get the success for whatever you have done. So as I said, there is this energy of waiting, right? So something here is about to complete, and there is this energy of fulfillment. There is this energy of completion, there is this celebration of achievement. Okay, कुछ complete हो रहा है, कुछ कोई cycle है जो complete हो रही है. As I said कि हो सकता है आप कुछ नया start करने का try कर रहे हो, and you will finally start to take action towards it. आप finally अपने ideas को, अपने plans को execute करने के लिए स्टेप लोगे, एंड देयर इज दिस एनर्जी ऑफ कंप्लीशन. दिस इज अ वेरी गुड कार्ड. सो वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू, यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, you will get the support from your family, from your workplace. Okay, everybody, it's like you have the support from everyone. It's just that if you think कि आपको लग रहा है कि कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, you just need to ask for it. Okay, and you will get the support from everyone around. All right, so that's the reading for you, Libra. Let's see what's the guiding message for you from the angels and ancestors deck. We'll take one guiding message for Libra for 2025. Message for Libra, October 2025. One message for Libra. Okay. All right. High priest. So it's like intent and create. Again, as I said, अगर आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है, so आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं कि आप बहुत इनोवेटिव तरह से चीज़ों को देख सकते हो, and you might you need to turn your plan into action. Okay, so it's like you need to have that intention of achieving something, and then you need to work towards it. Okay, so this card is basically that you need to trust your talent, you need to trust your your skills, and work towards it, work towards your goal, work towards something you feel passionate about, you feel to work towards something. ओके, सो आप अपने प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, क्लैरिटी के साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप स्टेप्स लो, एंड थिंग्स विल फॉलो. ओके, सो दैट्स द रीडिंग फॉर यू, Libra. Please do claim the positive energy from this reading, and if you have liked it, please do like this video, and if you have not subscribed to my channel, I request you to subscribe to my channel for daily tarot insights. Bye bye.